ہیلو اینڈ السلام علیکم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت تک سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے جس اوج کمال پر پہنچ چکا ہے وہ حیران کن ہے۔ ناظرین کرام، انسان خلا کی وسطوں کے بارے میں تحقیق کے میدان میں کائنات کے اسراروں کا کوچ لگاتے لگاتے چاند کے بعد مریخ اور اس سے بھی آگے اپنے نظام شمسی کی حدود سے باہر بھی راکٹ اور خلائی گاڑیاں بھیجنے کے قابل ہو چکا ہے۔ عرصے آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر اور پاتال کی گہرائیوں تک انسان کی دسترس میں آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں، جسے ہم کرۂ ارض کہتے ہیں اور جس پر ہم بستے ہیں، ابھی بھی بے شمار ایسی جگہیں اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے اور جن کے بارے میں سائنس بولنے سے قاصر ہے۔ ناظرین کرام، برمودا ٹرائی اینگل کا نام ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ آج بھی سائنسدان ان کے متعلق صحیح طور پر جاننے سے قاصر ہیں۔ اس طرح اہرام مصر کے بارے میں بھی مکمل معلومات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ ناظرین کرام، برمودا ٹرائنگل اور اہرام مصر کے علاوہ بھی ہمارے اس زمین پر بہت سی ایسی جگہیں ہیں جن کی توجیہ و تشریح کرنے سے سائنس عاجز ہے۔ ایسی چند مقامات کا ذکر آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ برج واٹر ٹرائی اینگل۔ ناظرین کرام، برج واٹر ٹرائی اینگل 200 اسکوائر میل پر محیط ہے اور امریکی ریاست میساچیوسیٹس کی جنوب مشرق میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جگہ مافوق الفطرت مخلوقات، اڑن تشتیوں، جن بوتوں، آتش بگولوں، غیر سائنسی مظاہر جن کے سائنس کوئی توجیہ پیش نہ کر سکے، برفانی انسانوں، بڑے بڑے اشہوں اور دیوہیکل پرندوں کا مسکن ہے۔ اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے 1970 کے عشرے میں لیورین کولمین نامی ایک کرپٹو زوالوجسٹ، مافوق الفطرت مخلوقات کے بارے میں جاننے کا علم رکھنے والے کے ماہر نے اپنی کتاب مسٹیریس امریکا میں کیا۔ یہاں حصہ سوامپ کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ برج واٹر ٹرائی اینگل میں مختلف چٹانیں اور جنگل بھی واقع ہیں۔ ان چٹانوں کے نام ڈائیگوٹن راک اور پروفائل راک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی قدیم مقام قبائل کی تاریخ کردار انوان نے اپنی بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار اعزاز کے طور پر پائی تھی۔ مشہور ہے کہ آج بھی رات کو بازو پھیلائے ہوئی ایک شخص کی شبیہ ان میں سے ایک چٹان کے اوپر نظر آتی ہے۔ برج واٹر ٹرائی اینگل میں واقع فری ٹاؤن فال ریور اسٹیٹ فاریسٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز یہاں نہ صرف لوگ خودکشیاں کرتے ہیں بلکہ جرائم پیشہ عناصر اور شیطان کے پیروکار بھی یہاں انسانوں کو قتل کر کے ان کی قربانی کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، برج واٹر ٹرائی اینگل کی حدود اس پاس رہنے والے اکثر لوگ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اڑن تشتیوں، پراسرار جانوروں اور انسان اور ان کے علاوہ بھوت اور بدروحیں اور جانوروں کی مسخ شدہ لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ ہوکو موک سوامپ کے علاقے میں برفانی انسانوں کا مسکن اور دیوہیکل پرندوں کو بھی اڑتی ہوئی دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان پرندوں کی پر 8 سے 12 فٹ چوڑے بتائے جاتے ہیں۔ اس طرح کا ایک دعویٰ ناٹنی کے ایک پولیس سارجنٹ تامس ڈراؤنی نے بھی کیا۔ اس دعوے کی اہمیت یہ ہے کہ سارجنٹ تامس نے اس دعوے کو باقاعدہ اپنی سرکاری رپورٹ میں درج کیا۔ 1998 میں مقامی پولیس کو 2 واقعات کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جن میں ایک گائے اور کچھ بچڑوں کے پاؤں کٹی مسخ شدہ لاشیں جنگل میں مختلف جگہوں پر پائے گئے تھے۔ روایت مشہور ہے کہ جب مقامی قدیم قبائل یورپ سے آنے والوں کے آگے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے صدیوں پہلے اس علاقے کو بد دعا دی تھی۔ اس وقت سے یہ جگہ آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ کے دوران ان قبائل سے اپنے بادشاہ کی مقدس کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی تلوار گم ہو گئی تھی، جن کی پاداش میں وہ مغلوب کر دی گئی ہیں۔ بنگن ٹون ٹرائی اینگل۔ ناظرین کرام، اس جگہ کو یونان نیو ایلین نامی کتاب کے مصنف جوزف ای سٹرو نے 1992 میں ریڈیو نشریات کے دوران دیا تھا۔ اس کا مقصد یونان کے ایک بحیرہ ریاست ورمونٹ کے جنوب مغربی علاقے میں 1920 سے 1950 کے دوران لاپتہ ہو جانے والے لوگوں کے نام سے ایک علاقہ منسوب کرنا تھا۔ یہ نام پھر مزید 2 کتب کے ذریعے زبان زدہ عام ہوا، جن میں سے ایک کتاب شیڈو چل ہے، جن میں اس نے کئی ابواب لاپتہ لوگوں کے تذکرہ کے لیے مختص کی۔ جوزف اس علاقے کو بھی برج واٹر ٹرائی اینگل کی مماثلت قرار دیا تھا۔
जोसेफ की कुतुब के मुताबिक मकामी लोग इस इलाके में पुरस्रार तौर पर लापता होने वालों की मुतल्लिक अजीब व गरीब कहानियाँ सुनाते हैं। ये पुरस्रार गुमशुदगियाँ 1940 के अशरे में अपनी उरूज पर पहुँच गई थी। ऐसी ही कहानियों में से एक मशहूर कहानी एक अमरीकी तालिबा पाउला जीन वेल्डन की है, जो इस जगह की सैर के लिए आई थी और 1940 में यहाँ से बाइकिंग करती हुई लापता हो गई। इस तरह 1945 में 74 साल मेरी र्यूज 4 शिकारियों के ग्रुप गाइड के तौर पर इनके साथ यहाँ आया और यहाँ से गायब हो गया। 1949 में जमीज टेड फोर्ड नामी एक तजुर्बाकार हाइकर यहाँ से लापता हो गया और फिर इसे किसी ने नहीं देखा। एक इन शायद के मुताबिक मेज यहाँ आने के लिए बस में सवार हुआ, मगर आखिरी स्टॉप के आने से पहले ही इस ज़मीन का गई या आसमान निकल गया, कुछ पता न चल सका। चौथा गुमशुदगा फर्द एक 8 साल बच्चा पावल जेफसन था। ये बच्चा भी 1950 में भी लापता हुआ। पावल अपनी मां के साथ ट्रक में सवार था। एक जगह इसकी मां ट्रक रोक कर किसी काम से नज़दीकी बाड़े में गई। जब वो तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आई तो पावल गायब था। इसका सुराग भी कभी न मिल सका। कि लापता होने के महज 16 दिन बाद 53 साल फ्रॉड एलेंगर अपने कज़न हर्बर्ट एक्सेल्स के साथ इस इलाके में हाइकिंग के लिए आई। हाइकिंग के दौरान इसका पैर फिसला और एक नदी में जा गिरी। नदी से बाहर निकलकर उसने अपनी कज़न को कहा कि वो वहीं इसका इंतज़ार करे। वो कैंप साइट जाकर कपड़े तब्दील करके आती है और फिर कभी वापस नहीं आई। 7 माह बाद इसकी लाश को इस इलाके से मिल गई, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जिस इलाके से इसकी लाश मिली, इस जगह को 7 माह के दौरान दर्जनों रज़ाकारों ने पैदल और हेलीकॉप्टर की मदद से भी मुतअद्दिद बार जान बांट दिया और इसी ढूंढने की कोशिश की। आसपास के लोग इन गुमशुदगियों को गैर मरी मखलूक और बर्फानी इंसानों की कारस्तानी करार देते हैं। ल्यूस वैली अमरीकी रियासत कोलोराडो में वाक़ इस वादी का कुछ हिस्सा न्यू मैक्सिको तक फैला हुआ है। दरिया रियो ग्रांड का मंबा यही है। मैक्सिको अमरीकी जंग के बाद ये इलाका अमरीका के कब्जे में आया। 1968 में यहाँ मकामी इंडियन यूट कबाइल के शाख का पेट यहाँ आबाद थे। पूरी दुनिया में इस वादी की वजह शोहरत ये है कि यहीं पर आज तक सबसे ज़्यादा उड़न तश्तियों के देखे जाने के दावे किए गए हैं। मसाशुदा मर्दा पालतू जानवरों के मिलने के दावे इसके अलावा हैं। उड़न तश्तियों की देखे जाने के वाक़यात इस इलाके में इतने आम हैं कि जॉर्डन मैसूरियन नामी एक खातून ने अपने फार्म हाउस में बाकायदा एक वॉच टावर महज इसलिए तामीर करवाया ताकि वो इन उड़न तश्तियों को वाज़ेह तौर पर देख सके। इस खातून ने 2000 से लेकर अब तक अकेले ही 50 से ज़ायद बार उड़न तश्तियों को देखने का दावा किया है। कई बार तो इन दर्जनों अफराद ने इकट्ठे एक ही वक्त में इनका इंतज़ार किया है, मगर उड़न तश्तियों से भी ज़्यादा मशक़शुदा मर्दा जानवरों के पाए जाने की चटपटी कहानियाँ यहाँ मशहूर हैं। ये सिलसिला 1967 में शुरू हुआ जब स्नेपी नामी एक घोड़े की तलाश मिली जिसका मुग़ज़ गायब था और गर्दन की हड्डियाँ निचली हुई थी। इस वक्त के बाद इस वाक़े के बाद इस तरह के सैकड़ों मज़ीद वाक़यात पेश आए। इन तमाम वाक़यात में कई चीज़ें मुश्तरका हैं। मसलन जानवरों के इर्द गिर्द खून का कोई कतरा नहीं पाया गया। दूसरी, इनकी जिस्मों को बहुत सफाई से काटा गया था, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि शिकारी दरिंदों का काम नहीं। और तीसरी ये कि ये तमाम जानवर एक दिन पहले तक बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना थे। इस सिलसिले में आज तक तहकीकात किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सकी और ये वाक़यात अब भी जारी हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात से पहले की रात इन्हें आसमान पर कुछ पुरस्कार सी रोशनियाँ नज़र आती हैं। इस बात से ये तासीर मिलता है कि शायद ये काम किसी खलाई मखलूक का है। मिशन ट्रायंगल झीली मिशन गुन शमाली अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी खुसूसियत यह है कि सारी की सारी अमेरिका ही में वाक़ है और दीगर 4 झीलें मुश्तरका तौर पर अमेरिका और कनाडा में हैं। इस झील के गिर्द आबाद अवलीन लोग हॉकवेल इंडियंस कहलाते हैं। 800 के बाद इनका कल्चर नाबूद हो गया है और अगले चंद 100 सालों में तक ये इलाका वुडलैंड इंडियंस का गहवारा बना रहा है और भला आखिर बाद में यहाँ यूरोपियंस का कब्जा हो गया।
मिशिगन ट्राई-एंगल इस झील के मरकजी हिस्से को कहा जाता है। ये ट्राई-एंगल भी तैयारों और बहरी जहाज़ों के ग़याब के बायस शोहरत रखता है। 28 अप्रैल 1937 को कैप्टन जॉर्ज आर डोनर अपनी बहरी जहाज़ में इस झील से गुजरने कैप्टन डोनर कुछ थकावट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मातहत को कहा कि वो अपने केबिन में आराम करना चाहते हैं, ताहम मंजिल पर पहुंचने से पहले इन्हें जगा दिया जाए। कई घंटों बाद जब इनका मातह इन्हें उठाने के लिए गया तो कैप्टन अपने केबिन में मौजूद नहीं थी। पूरी जहाज़ को छान मारा गया मगर कैप्टन डोनर नहीं मिले। 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 2501 अपनी मंजिल की तरफ रवां थी, जहां के पायलट रॉबर्ट सेलेंट बहुत तजुर्बेकार पायलट शुमार होते थे। जहाज़ में इस वक्त 58 मुसाफिर भी सवार थे। दरमियान शब में जब इनकी फ़्लाइट को ख़राब मौसम की वजह से अपना रुख थोड़ा तब्दील करना पड़ा तो वो मिशिगन झील के ऊपर से गुजरे। इसी दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी 3500 फुट से कम करके 2500 फुट पर आने की दरख्वास्त की, लेकिन इसकी कोई वजह बयान नहीं की। इस वजह से इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये आखिरी राब्ता था जो जहाज़ और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ और इसके बाद जहाज़ लापता हो गया। ये बात वाज़ेह रही कि जहाज़ झील में गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर इसके नशिस्तों की कोर के टुकड़े तैरती हुई पाई गई। मगर सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये है और बात यह है कि बहुत तलाश और वसीयार के बावजूद ना तो जहाज़ और ना ही मुसाफिरों की कोई बाकियात मिल सकी। पॉइंट प्लीजेंट। इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से खुश रहते होंगे और वहाँ जाने वाले भी इस जगह पहुँचकर बहुत खुशी महसूस करते होंगे। सितम ज़रीफ़ी मगर ये है कि ऐसा नहीं है। ये शहर रियासत वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में वाक़ है। ये कस्बा भी अपने पुरअसरार और अजीबोगरीब दास्तानों की वजह से मशहूर है। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा शोहरत इन कहानियों को मिली जिनमें मोतमन नामी एक मखलूक का जिक्र आता है। नवंबर 1967 में और नवंबर 1966 में इस मखलूक ने पूरी इलाके में दहशत फैलाई रखी। प्लीजेंट के 100 से ज़्यादा अफराद मोतन मैन को देखने की दावेदार हैं। इनके बकौल मोतन मैन का कद 7 फुट लंबा था। इनकी छाती चौड़ी और लाल सुर्ख आंखें मकनातीसी कुव्वत रखती थी। अलावा इसके 10 फुट लंबे पर भी थी जो इनकी पीछे पीछे ज़मीन पर घसीटते रहते थे। मोतमैन जो किताबों और फिल्मों का मौजू भी रहा है कि कई तजवीहात हो सकती है। कुछ लोगों के नज़दीक वो कई खलाई मखलूक थी, जबकि कुछ के ख्याल में वो अर्तकाई मराहिल से गुजरती हुई कोई नोख थी। अक्सर लोग समझते हैं कि वो दरअसल में कोई अलू या साहली बिगला नुमा परिंदा था जिससे पॉइंट प्लीजेंट के लोग खौफ खाते रहे। इसके अलावा पॉइंट प्लीजेंट के लोग भी उड़न तश्तियों देखने जाने और मैन इन ब्लैक के नाम से मौसू इंसान नुमा ऐसी मखलूक की इन्हीं शाहिद होने के दावेदार हैं जो ज़ाहरी वज़ाहत कता और आवाज़ के ज़रिए लोगों के अवसान ख़ता कर देने की सलाहियत रखते हैं। इस मखलूक के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ़ ऐसे लोगों की मुलाकात करते हैं जो माहिरुल अक़ूल वाक़यात के इन्हीं शाहिद होने की शोहरत रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बना लूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए।